a parliament committee headed by late Sushil Kumar Modi, they recommended that declaration of assets and liabilities of the judges of High Courts and Supreme Court must be mandatory. जजेज भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे हर कोई पब्लिक सर्वेंट है। और हजारों क्या लाखों मुझे लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, इलेक्टोरल कैंडिडेट्स के, मिनिस्टर्स के, एमएलएज के, एमपीज के, सबके डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई उसके एसेट्स और लायबिलिटीज के डिक्लेरेशन की वजह से किसी का कोई नुकसान होगा। Of the 25 high courts across the country, there are 749 judges currently shown posted in them. But the assets of only 98 of those 749 judges are available in the public domain through declarations posted on the official websites of these high courts. And this 98 numbers from 749 makes up for 13% according to the data reviewed by the Indian Express. And to discuss this asset declaration of the judges, we have none other than one of the stalwarts of investigative reporting, Shyamlal Yadav of the Indian Express with us. Shyamlal sir, welcome. Tell us a little bit about our Express investigative report. Yeah, in fact, our viewers may recall that last year, 7th August 2023, a parliament committee headed by late Sushil Kumar Modi, they recommended that declaration of assets and liabilities of the judges of higher courts, means high courts and Supreme Court, must be mandatory. So they had recommended a legislation, कानून बनाने के लिए उन्होंने suggest किया है. So after that, the Indian Express filed. First, I scrutinized the website of all the high courts and found that only some of them have declaration of assets and liabilities available in public domain. After that, I filed RTI applications to some selected high courts in every region, north, south, east, west, just to understand that is there any discussion on that. So I particularly asked them that if any correspondence between Honorable Supreme Court and High Courts is there, please provide details of that. And if there is any proposal of putting declarations in public domain, then please provide that information. So this type of information I had sought, and very recently, in fact, this August 2024, the Supreme Court, they have 33 judges, and suddenly one day a website reflected that 27 of the 33 judges have declared their assets and liabilities. Assets declaration is not in public domain, but they mentioned that 27 have declared their assets and liabilities. So after that, I put all those details of RTI application, whatever information we had received, and again went through the website of every High Court and Department of Justice. Then we put this story out, which is published today. Right. Shyamlal sir, थोड़ा basic पे जाएंगे, बात करेंगे. Why is it required that the judges are also supposed to declare assets? Yeah, in fact, ये judges क्या judges भी public servant हैं, जैसे हर कोई public servant है. और इनफैक्ट इसका डिस्कशन पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, मींस जैसे मिनिस्टर्स के लिए, it was discussed even in constituent assembly. उसके बाद से ही इसका डिस्कशन चालू हो गया था. देन पर्टिकुलरली फॉर द ब्यूरोक्रेट्स, मींस like IAS, IPS officers, that is called All India Service Rules, and then other central services, that is called CCS, Central Civil Services Rules. They have particular provision that every member of the service will declare his or her assets and liabilities, particularly immovable assets. They have mentioned that. So they are declaring that.
then ministers' first resolution of Union Cabinet was passed in 1964. Since then, more or less, ministers were declaring to Prime Minister, and in the states, ministers were declaring to chief ministers. So, first thing is that declarations were there, but not for the judges. For the judges, in 97, Supreme Court in a conference, in a full court, they had passed Justice J.S. Verma ji was Chief Justice of India when this particular resolution was passed. Correct. That every judge will should there is word should declare their assets and liabilities to the Chief Justice of India of Supreme Court or on the respective high courts. So that was for declaration. So some judges may be declaring or may not be declaring because the word was should, means they were expected. Not, it was not mandatory. But in 2009, RTI Act was implemented in 2005. Then number of RTI petitions were there before Supreme Court. And in 2009, Supreme Court has another resolution to put those assets in public domain. At one time, declaration of all the judges of Supreme Court was available on public domain, but that was not updated after 31st March 2018. And after that, this discussion was going on, and then last year Parliament committee recommended, and based on that Supreme Court resolution, number of high courts had their own resolution, and in that process, what message went through the to other high courts also, means high courts. So these high courts which we have mentioned, they declared their assets and liabilities, and some of them have put in public domain. So declaration is one thing, and putting in public domain is other thing. Like I told you about services. तो services का जब पर्टिकुलरली आपने देखा होगा आरटीआई एक्ट लागू होने के बाद ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बड़ा सवाल उठने लगे थे. जी. And during this Anna Hazare movement, around 2010, सारी सर्विसेज में डीओपीटी ने, इनफैक्ट उसमें हमने भी उस समय आरटीआई में बहुत एफर्ट किए थे, डीओपीटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. आफ्टर दैट प्रोसेस स्टार्टेड, उन्होंने सारे सर्विस एसोसिएशंस जो हैं, आईपीएस आईएएस एसोसिएशन वगैरह की एडवाइस लेकर के दे डिसाइडेड दैट एवरीथिंग विल बी पुट इन पब्लिक डोमेन. मिनिस्टर्स का डिक्लेयर तो पहले से होता था, बट ये 2009 के बाद सब कुछ वेबसाइट पर अवेलेबल है. अभी भी आज भी आप किसी यूनियन मिनिस्टर के एसेट्स और लायबिलिटीज के डिटेल देखना चाहें तो इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन ऑन पीएमओ वेबसाइट. इसी तरह से 2004-5 में दोनों हाउसेस के, मींस लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के डिक्लेरेशन उनको करने पड़ते हैं, और दे हैव नॉट पुट इन पब्लिक डोमेन, बट एनीवन कैन एक्सेस अंडर आरटीआई एक्ट any MP's detail you can get under RTI. Then आपको ध्यान होगा एक चीज और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जी. 2002 के आसपास जो फैसला आया था इलेक्टोरल कैंडिडेट्स के एसेट्स पब्लिक डोमेन में डालने के लिए. करेक्ट. आप जब कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो यू हैव डिक्लेयर एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट यू एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन as well as your assets and liabilities. So ये बहुत व्यापक बहस का और विमर्श का हिस्सा था, जिसके बाद ये अलग अलग सेक्शन जो पब्लिक सर्वेंट्स के हैं उनके एसेट्स डिक्लेयर करना एक बात थी और उसको पब्लिक डोमेन में लाना दूसरी बात थी. तो जैसा आपने देखा, ये सिर्फ हाई कोर्ट्स के इतने जजेज हैं जिनके एसेट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, because everything is voluntary, it's not mandatory. So even declaration is not mandatory. So disclosure is other thing. Disclosure तो उसके बाद का स्टेप है. पहले तो डिक्लेरेशन ही मैंडेटरी नहीं है, उसके बाद फिर जब आ जाता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उनके 27 जजेस ने डिक्लेयर किया, बट इट्स नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. करेक्ट.
श्यामलाल सर, आपके रिपोर्ट में ये बात है कि देर आर 3 हाई कोर्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ओवर 80% ऑफ द एसेट जी जी डिक्लेरेशन. जी So can you जी tell us जी। more about that? Which are the high courts and which are the numbers of judges that are नहीं, that ये तो have? सब कुछ लिखा हुआ है स्टोरी में। इट्स Hmm. मीन्स दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड केरल हाई कोर्ट मिला दीजिए तो ज्यादातर जो डिक्लेरेशंस है वो इन्हीं के अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। तो थोड़े से इधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हैं। तो बाकी तो आपने देखा ही कि ज्यादातर के वो नहीं है। तो अब ऐसा है, एक बार अब लाइक दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में अभी 3 जजेस एलिवेट होकर के अलग अलग जगह, एक तो यहीं पर चीफ जस्टिस बने हैं, और 2 और उनमें से एलिवेट होके दूसरी जगह जा रहे हैं चीफ जस्टिस बन के। तो मैं Correct. उनका लिस्ट में देख रहा था कि एटलीस्ट इन तीनों ने डिक्लेयर कर रखे हैं और उनके पब्लिक डोमेन में अवेलेबल। सो इस तरह से जो ये 3 हाई कोर्ट आपने पूछे वो यही तीनों हाई कोर्ट हैं। सिंस द इंफॉर्मेशन वाज some a part of it was under RTI and other details where everything is available in public domain. So हमने सीधा सीधा सबका नाम भी लिख दिया है, सबके नंबर ऑफ जजेस लिख दिए हैं, टोटल जजेस कितने वहां पर पोस्टेड हैं इस समय वो भी लिख दिया है, तो नथिंग इज हिडन देयर। हाँ, तो जैसे आपका रिपोर्ट कहता है कि केरला हाई कोर्ट लिस्ट टॉप करती है, where जी जी। 37 आउट ऑफ 39 जजेस के यस यस, डिटेल्स दो लोगों ने अवेलेबल नहीं किया हैं. है। या. और वहां तो जो 2 जजेस ने नहीं किए हैं, मुझे लगता है वो कहीं से ट्रांसफर होके वहां गए हैं, मैं देख रहा था उनका डिटेल। तो हो सकता है उनका भी थोड़े दिनों में आ ही जाए पब्लिक डोमेन में, बट अभी नहीं है अवेलेबल। Right. Shamlal sir, who keeps a watch on this asset declaration or making it public? Who keeps a watch on it for High Court judges? देखिए देखिए, ये तो इट्स इट्स अस फॉर मींस ऑर्डिनरी सिटीजन वॉच करता है, नंबर 1, क्योंकि इसी के लिए वो पब्लिक डोमेन में डाला जाता है। दूसरा, अब लाइक इन द केस ऑफ जजेस, जस्टिस ऑफ इंडिया, high court judges, they declare to the chief justice of that particular high court. Ministers declare to prime minister of India. States में ministers declare to chief minister's office. lok sabha members declare to speaker. राज्य सभा members declare to their chairman. तो इसी तरह से आपको ध्यान होगा 2010 के आसपास कई स्टेट्स में ऐसे डिस्क्लोजर की बहुत मुहिम चली थी। नीतीश कुमार ने बिहार में और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अपने ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के पब्लिक के एसेट्स अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, अगर आप चेक करें तो। Correct. और इसमें ज्यादा स्ट्रिक्ट जो जिसका जो वाच गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से हो पाता है, वो जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ऑफिसर्स का डीओपीटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द आईपीएस एंड फॉरेन, ये जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है, वो फॉरेस्ट सर्विस 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, बाकी सेंट्रल सर्विसेज, वहां पर आपकी फाइल, आपका कोई भी आपका डिपार्टमेंटल, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका एम्पैनलमेंट हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है, anything it will be considered only when first thing they will see that आपने डिक्लेरेशन किया है कि नहीं एसेट्स और लाइबिलिटीज का। और पब्लिक डोमेन में तो उसको डालना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने फैसला करके सबके लिए जरूरी कर दिया है पब्लिक डोमेन में डालना। तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी आई है, बट अथॉरिटीज का अब आपने चीफ जस्टिस के सामने डिक्लेयर कर दिया है, लाइक मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर के सामने कर दिया है। अब प्राइम मिनिस्टर उसका क्या करेंगे? वो तो पब्लिक के लिए वॉच करने को है ना, कि हम आप उसमें देखें, हम आप मीन्स ऑर्डिनरी सिटीजन वो देख रहा है। इसी तरह से डिक्लेरेशन जिनका भी हुआ है उसको पब्लिक डोमेन में जो पब्लिक सर्वेंट है वो डालना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वॉच करना तो तभी और हम ही लोग करेंगे जब वो पब्लिक डोमेन में आएगा। जी। श्यामलाल सर, थोड़ा लेजिस्लेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने बताया 7 अगस्त लास्ट ईयर पार्लियामेंट्स कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस ने रेकमेंड करा था कि दे रेकमेंडेड द लेजिस्लेशन फॉर मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज
of both judges of the Supreme Court and Yes, yes, High yes. Court. Yes, yes. तो वो लेजिस्लेशन के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि why नहीं, was अब ऐसा है, पार्लियामेंट की कमेटीज अलग अलग रिपोर्ट देती रहती हैं, फिर उस पर पार्लियामेंट वो एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाता है कि किस पर एक्शन हुआ और किस पर नहीं हुआ, वो सब चलता रहता है। बट अभी तक लेजिस्लेशन की जहां तक बात है, वो लेजिस्लेशन ऐसा कोई बना नहीं है कि मैंडेटरी उनके लिए कर दिया जाए। और एक 2009 में एक एमपी होते थे राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से, महेंद्र मोहन जी, वो एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आए थे राज्यसभा में कि जजेज का ये डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये मैंडेटरी होना चाहिए। बट वो प्राइवेट मेंबर बिल्स ज्यादातर आपको पता है कि वो अडॉप्ट हो नहीं पाते हैं, तो उसका भी वही हश्र हुआ था। लेकिन लेकिन वो लेजिस्लेशन जिसका सुझाव, जिसकी सिफारिश सुशील मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने किया था, वो अभी तक शायद सरकार के विचाराधीन हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून तो बना नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए अभी जो कुछ है वो सब वॉलेंटरी। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बताइए, बिकॉज यू आर वन ऑफ द पायनियर्स व्हेन इट कम्स टू यूजिंग आरटीआई एज अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो नहीं नहीं, ये हम आरटीआई का लोगों ने थोड़ा इसमें थोड़ा प्रोसीजर बताइए कि हाउ डिड द इंडियन एक्सप्रेस गो अबाउट। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात थी। मैंने जब वो लास्ट ईयर अगस्त में सुशील मोदी जी की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी कि सबके लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए, तो तभी हमने सोचा कि हाई कोर्ट से एक पूछते हैं। तो अब उसमें एक हाई कोर्ट का जवाब हमने इसमें कोर्ट मेंशन नहीं किया है, वहां से तो मुझे लिख करके आया कि आपका पर्पज क्या है वगैरह वगैरह, जो कि आरटीआई एक्ट में पूछा नहीं जा सकता है। तो जिन हाई कोर्ट्स का जवाब आया वो हमने मिला करके ये कर दिया, और बहुत सिंपल सी हमने क्वेरी सबसे पूछी थी कि इज देयर एनी प्रपोजल to put assets declarations in public domain, and how many of the judges have posted their declared their assets and liabilities, how many of them have not declared, and is there any correspondence between your high court and Supreme Court of India with regard to disclosure of and declaration of these assets। तो ये सब बहुत सिंपल से सवाल थे हमारे। कुछ ने उसका जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया, आपने देखा ही, हमने सब मेंशन किया हुआ है। दिया क्या मतलब, वो जवाब जो मैं चाहता था उस फॉर्मेट में तो किसी ने नहीं दिया। वो अपने अपने रेजोल्यूशंस ज्यादातर ने हमें दे दिए, और बाकी जो हमने आज ये इंफॉर्मेशन छापी है, इसमें ज्यादातर उनकी जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वही है। ये कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं था कि जिसमें बहुत कोई कॉम्प्लेक्सिटी रही हो। सब कुछ शीशे की तरह साफ है। जो हमने देखा और जो हमने आरटीआई में पाया, उसको हमने स्टोरी की तरह छाप दिया है। जी, बट आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब भी मिले हैं, जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि इट डज नॉट फाइंड एनी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। Andhra Pradesh High Court responded that the declaration of assets is confidential and the said information cannot be furnished। तो ऐसे आपको कई डिफरेंट टाइप्स के जी हाँ, ऐसे मिले। इन लार्जर डिबेट है कि कोई किसी के भी एसेट्स और लायबिलिटीज के डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आने के बाद क्या किसी की प्राइवेसी वायलेट होती है। तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आपको पता ही है कि जो पब्लिक डीलिंग में है, टैक्स पेयर के पैसे से जो भी काम कर रहा है, आप देखिए मिनिस्टर्स के एसेट्स अगर अवेलेबल हैं तो उनकी कोई प्राइवेसी वायलेट नहीं हो रही। ब्यूरोक्रेट्स के, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स से लेकर के नीचे तक सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स के एसेट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, तो किसी की प्राइवेसी वायलेट नहीं हो रही है, उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है। इलेक्टोरल कैंडिडेट जो होता है उसका मोस्ट डिटेल्ड फॉर्मेट उसका है डिस्क्लोजर का, उसकी वाइफ के पास कितनी सोने की चेन है वो भी सब डिक्लेयर करता है। सब कुछ means you declare about the candidate and his or her spouse and
डिपेंडेंट्स वो सब करते हैं, ये भी जजेज का जो भी है वो डिपेंडेंट्स और स्पाउस का करते ही हैं। तो सबसे डिटेल्ड ये इलेक्टोरल कैंडिडेट्स का हर चीज उनकी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जीतने के बाद वो लोकसभा में या राज्यसभा में और असेंबलीज में और काउंसिल्स में वो वहां भी फिर से करते हैं। तो आरटीआई में आप उसको ले सकते हैं, वहां कोई उनकी प्राइवेसी या वायलेट नहीं होती, वहां कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का इश्यू नहीं होता। लेकिन ऐसा ही अब जैसा ये जजेज का इश्यू है, इसी तरह से हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एमडीज के बारे में एक बार बहुत लड़ाई लड़ी थी आरटीआई में। जी किसी ने नहीं दिया था। वो कहते हैं कि उनकी प्राइवेसी वायलेट होती है, उनका उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट होती है। अब एलआईसी का अगर एमडी या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का एमडी, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज के जो डिक्लेरेशंस हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, तो इससे किसी की क्या प्राइवेसी वायलेट हो रही है और इससे इसका क्या मिसयूज हो सकता है, आप बताइए ना। अगर अगर किसी मिनिस्टर का किस शहर में कितने फ्लैट्स हैं ये किसी को पता चल जा रहा है, फ्लैट का उस पर एड्रेस भी है, इसमें क्या उसका नुकसान होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन ये बड़ा लार्जर डिबेट है एंड इट इज अप टू द गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू डिसाइड। लेकिन हमने तो वो लिखा है जो कुछ जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में और जिसकी जानकारी है जो उन्होंने हमको आरटीआई में लिख कर दिया। I know this could be a little bit controversial, Shangal sir, but what do you think could be a probable reason of not declaring or not making it in the public domain? अब देखिए, ये कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। अब वो एसेट्स और लाइबिलिटीज को छुपाना जैसे है ना, मुझे तो इसमें कोई कोई मींस समझ में नहीं आता इसको छुपाने का कोई कारण। तो अब क्या कहें कि वो क्या, मुझे लगता है हर इंडिविजुअल के अलग अलग रीजन होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो जिनसे अपनी बात होती है और जो हम पब्लिक डोमेन में देखते हैं वो कहते हैं कि इट्स अ प्राइवेट, इट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, इट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, दे हैव डिक्लेयर्ड इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। तो इसको अब वो क्या कहें, मतलब एक कोई उसके लिए लॉजिक नहीं होगा। लेकिन जब तक जिसका डिस्क्लोज नहीं होता है, लाइक ऑफिसर्स का जब तक नहीं हो रहा था तब तक ये इश्यू रेज होते थे कि इसमें लोगों की प्राइवेसी वायलेट होगी, पर्सनल डिटेल्स है ये बाहर आ जाएंगे। बट आप मुझे बताइए ना, किसी के डिक्लेरेशन के बेसिस पर अब तक कोई उसका नुकसान हुआ है? मुझे तो नहीं ध्यान में आया। और हजारों क्या लाखों मुझे लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, इलेक्टोरल कैंडिडेट्स के, मिनिस्टर्स के, एमएलएज के, एमपीज के, सबके डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिक्लेरेशन की वजह से किसी का कोई नुकसान हो। तो इसलिए जब तक मैंडेटरी नहीं होता है लेजिस्लेट करके सरकार की तरफ से, तब तक जब तक ये शुड वर्ड रहेगा ना, तो तब तक मुझे लगता है कि लोग किसी न किसी बहाने जिनको नहीं करना है वो किसी न किसी बहाने नहीं करते रहेंगे। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि अब जैसे उस समय बहुत अच्छा कदम था सुप्रीम कोर्ट का, जब जब आरटीआई पर सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा था एक तरफ, वेदर इट इज ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट और नॉट, इस पर वो कई साल तक मुकदमा लड़ता रहा सुप्रीम कोर्ट खुद। लेकिन उसी बीच में ये कोर्ट ने रेजोल्यूशन पास किया और सारे जजेस के एसेट्स पब्लिक डोमेन में डाल दिए। वहां कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, बताइए ना उसके बेसिस पर किसी के साथ कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी का उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो इट्स क्या बोले, ये हर एक का अपना इशू है कि वो किस वजह से। So we were discussing about the judges and their declaration. Can you tell us what is the system for declaration of assets and liabilities for other public servants, you know, like MLAs, ministers, other government officials? उनका क्या system? नहीं, ये हमने इस सवाल का जवाब वैसे पहले ही दे दिया, आप शुरू में ही आपने सुना। ये क्या है, सबका बहुत वेल डिफाइंड रूल्स हैं। एमपी मींस इलेक्टोरल कैंडिडेट, तो अगर एक कोई भी गलत जानकारी दे दिया तो उसका नॉमिनेशन ही कैंसिल हो सकता है, आपको मालूम है। इलेक्शन कमीशन अभी
सुल्तानपुर के एक लोकसभा कैंडिडेट एमपी के खिलाफ मेनका गांधी जी ने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी कि इसने जो है इस कैंडिडेट ने गलत इंफॉर्मेशन दे रखी थी। तो ये सब होता है। आ, उनका बहुत डिटेल्ड है। 2002-3 में जब वो फैसला आया था, उसके बाद से 2004 ऑनवर्ड जितने इलेक्शन हुए हैं, सब कैंडिडेट्स डिक्लेयर करते हैं, एमपीज एमएलएज डिक्लेयर करते हैं, एमपीज लोकसभा स्पीकर को और राज्यसभा चेयरमैन को, और एमएलएज अपने स्पीकर्स को, काउंसिल्स के चेयरमैन को, वो करते ही हैं, उनको करना पड़ता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज को करती हैं। बहुत सारे जो अधिकारियों कर्मचारियों के एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिटेल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, बिकॉज इट हैज नाउ बिकम मैंडेटरी फॉर देम। बट फॉर जजेज वो अभी शुड है, तो शुड जो वर्ड है वो जब तक रहेगा तब तक मुझे लगता है वो डिस्क्लोजर पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपने पूछा, वो पब्लिक सर्वेंट्स जितने हैं उसमें लगभग सभी सेक्शन, दो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उनका क्यों नहीं होना चाहिए पब्लिक डोमेन। अभी आपने देखा ना, ये सेबी की चेयरमैन की जो कंट्रोवर्सी हुई जी। क्या, सारे जो बैंकों के एमडीज और जो और सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए। वो आ जाएं तो मुझे लगता है थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, थोड़ा जो है लोगों पर थोड़ा जो कहिए कि करप्शन और गलत काम न करने का दबाव भी बनेगा। तो मुझे तो लगता है सारे सारे पब्लिक सर्वेंट्स के जितने सेक्शन है सब के लिए होना चाहिए, बट ज्यादातर के लिए हो चुका है। अगर हम स्टार्क डिफरेंस नोटिस करें श्यामलाल सर, whose declarations are in the public domain and whose declarations are not, like if you have to give a clear distinction. Like the ministers in most of the states, in fact many of the states and central government, ministers details are in public domain. अब लाइक कुछ स्टेट्स ने थोड़ा रेसिस्ट किया है, जैसे यूपी गवर्नमेंट में मायावती जी की सरकार थी, तो उनकी कैबिनेट ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया कि जो कोड ऑफ कंडक्ट मिनिस्टर्स का है, मींस उसमें डिक्लेरेशन ये इंक्लूड होते हैं, वो आरटीआई के परव्यू से बाहर होंगे। तो आज तक आप देखते होंगे कि सारे केंद्रीय मंत्रियों के, प्रधानमंत्री जी के एसेट्स तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट पर अवेलेबल है, लेकिन यूपी के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के नहीं अवेलेबल है। तो लेकिन लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में है ऑलरेडी, तो मिनिस्टर्स का तो लगभग हो गया। इलेक्टोरल कैंडिडेट्स का बहुत डिटेल्ड है, और सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर या सीईओ की वेबसाइट पर वो देखा जा सकता है, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। एमपीज एमएलएज का डिक्लेरेशन होता है, बट पब्लिक डोमेन में नहीं डाला। इनफैक्ट कुछ साल पहले राज्यसभा वेबसाइट पर थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए डाल दिया था, लेकिन बाद में विथड्रॉ कर लिया था। बट वो आरटीआई में आप एक्सेस कर सकते हैं, लोकसभा वाला भी और राज्यसभा वाला भी, जो हम लोग करते भी रहते हैं। इसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सब पब्लिक डोमेन में उनको डालना पड़ता है, तो एनीवन कैन एक्सेस। तो इनका सबका तो हो गया, बट ये सबसे जो कहिए कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो ऑनरेबल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वो कितना है वो आज आपने देख लिया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फॉर्मर जजेज का कुछ महीने तक पहले तक सारा कुछ पड़ा हुआ था वेबसाइट, तो अभी तो फॉर्मर जजेज का उन्होंने हटा दिया और सिटिंग जजेज का सिर्फ नंबर दे दिया कि इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ। हाई कोर्ट्स का आपने देखा। तो ये हमें लगता है कि जब तक यूनिफॉर्म कोई पॉलिसी नहीं होगी और उसके लिए कोई लेजिस्लेशन बना के वो मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, ये सब सरकार का और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच का मामला है। तो हमने तो वो चीज सामने रखने की कोशिश की है जो अभी है। So Shamlal sir, at the end of our discussion, I think the bigger question remains that why not declare the assets and liabilities and let the government servants, the public servants, to use the right word, be accountable to the common man. I think that is what you were trying to address, and I think that is what Yes. you were trying to say through the
exclusive Express investigative report that you have done. To our viewers, I would like to tell you that Shyamlal Yadav's report is readily available on our website, indianexpress.com, and you can visit our official YouTube channel of the Indian Express to hear the entire conversation. I am Flora Swai, and with me, one of the pioneers of RTI and investigative journalism of the Indian Express, Shyamlal Yadav. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar.